Students, continuing with geometric progression. The next question is NCERT 32 exercise 9.3. If arithmetic mean and geometric mean of the roots of a quadratic equation are, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी रूट्स का अरिथमेटिक मीन 8 है और ज्योमेट्रिक मीन है 5. ठीक है, arithmetic mean and geometric mean of the roots of a quadratic equation are 8 and 5 respectively. Then obtain the quadratic equation. Quadratic equation निकालो क्या होगी. तो सपोज करो let the two roots of quadratic equation are, okay, that's the two roots of the quadratic equation are AB. Given arithmetic mean of the roots is A is, what is A? A plus 3 by 2. This is 8. From there, what is A plus 3? 8 into 2, 16. And the geometric mean, that is under root AB, is 5. What is AB? 25. Now, the equation whose roots are A and B is same. 10th का फॉर्मूला x square minus sx plus p is equal to 0. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x square minus sum of roots plus product of roots is equal to 0. That is x square minus 16x plus 25 is equal to 0. So which is the required equation. अगर ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका शॉर्टकट है, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी सम ऑफ रूट्स इज a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज g, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन the sum of whose roots is arithmetic mean. Of the roots of the two equation and product of the roots is g. इसकी दो रूट्स हैं, so that they are arithmetic mean of the roots is A and product geometric mean of the mean of the roots is G. S A के बराबर हो जाएगा और P किसके बराबर हो जाएगा? G स्क्वायर. यानी कि इक्वेशन क्या होगी? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस G स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इसको भूल जाओ. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी रूट्स का अरिथमेटिक मीन a है और ज्योमेट्रिक मीन g है, तो वो इक्वेशन क्या होगी? x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस g स्क्वायर इज इक्वल टू 0. लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन. फ्रॉम NCERT. These are statement type questions. First I am taking question 31. This is what will be rupees 500 amounts to in 10 years. Initial amount is rupees 500. अरे 10 साल में ये अमाउंट कितनी हो जाएगी? After its deposit in a bank, अगर इसको एक बैंक में डिपॉजिट किया जाए, विच पेज एनुअल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%. ठीक है, इसका एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. तो 10 साल में कितनी हो जाएगी? तो व्हाट इज आफ्टर 1 ईयर?
इज अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद अमाउंट कितनी होगी? दिस इज 500 इंटू 1 प्लस 10/100 रेज़ टू द पावर 1, and after 2 years it will be 500 into 1 plus 10/100 square, so on. After 10 years this will be 50 into 1 plus 10/100 raised to the power 10. So this one simplification gives 500 into this will be 1.1 raised to the power 10. The amount will be this much. Okay, this is nothing else. Formula of compound interest है 1 plus r/100 raised to the power 10. Let us take another example. Another example of GP. This is example 21. This is example 21. Find 4 numbers forming a geometric progression. एक geometric progression के 4 numbers बताओ. In which the third term is greater than the first term by 9. तो पहले GP के numbers पोज कर रहा हूँ. Let 4 numbers in GPP. A, AR, AR square, AR cube. तो given है third term is greater than the first term by 9. That is third term is greater than the first term by 9, and the second term is greater than fourth by 18. Second term is greater than fourth by second term is greater than fourth by minus 18. We have to find 4 numbers in GP such that the third term is greater than first by 9 and the second term is greater than fourth by minus 18. Now what is T3? AR raised to 3 minus 1. What is T1? A is equal to 9. That is AR square minus A is equal to 9. That is A is common. R square minus 1 is equal to 9. And here second term is AR is for 2 minus 1, fourth AR is for 4 minus 1 is equal to 18. AR minus is equal to minus 18. ठीक है, तो माइनस साइन हटाने के लिए इसको इस तरफ कर दो. AR क्यूब माइनस AR साइन चेंज कर दो 18. इसमें से AR इज कॉमन. AR स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू दिस इज इक्वेशन नंबर 2. डिवाइड dividing second by first. AR R square minus 1 upon first is A into R square minus 1 is equal to 18/9. That is 2. इस तरफ R square minus 1 कर दिया, A से A कर दिया, तो R is equal to आ गया 2. Put in first में put कर दो. A into 2 square minus 1 is equal to 9. So what is A? 2 square minus 1 is 3 is equal to 9 by 3 is equal to 3. तो हमें A भी पता लग गया और R भी पता लग गया. R is 2 and A is 3. What are the numbers A? That is 3 into 2, 3 into 2 square and 3 into 2 cube. That is 3, 6, 12 and 24.
34. Now you can cross check this question. T3 minus T1. T3 minus T1 is 9. T2 minus T4. T2 minus T4 is minus 18. Such questions must be cross checked. Now some additional questions from other books. First is, if two geometric means G1 and G2, two geometric means small g1 and small g2, and one arithmetic mean A. Be inserted between two numbers. Show that G1 square upon G2 plus G2 square upon G1 is equal to 2A, and G1 cube plus G2 cube is equal to 2A G1 G2. This is to be proved. Now we are given G1 and G2. Are two geometric means between A and B. A and B हमने नंबर्स पोज किए हैं. सपोज G1 G2 उसमें दो ज्योमेट्रिक मीन्स हैं. अगर इसमें दो ज्योमेट्रिक मीन्स है तो A G1 G2 P आर इन जीपी. सारे नंबर किसमें होंगे? ए और बी को दोनों तरफ लगाओ तो जीपी में. अगर ये जीपी में है तो इनकी कॉमन रेशियो G1 अपॉन A इज इक्वल टू G2 अपॉन G1 इज इक्वल टू B अपॉन G2. दैट इज सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड अपॉन सेकंड इज इक्वल टू फोर्थ अपॉन थर्ड. नाउ फ्रॉम दिस टू ये दोनों को ले लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे G1 G2 G1 स्क्वायर अपॉन G2. G1 स्क्वायर अपॉन G2 किसके बराबर आ जाएगा? 1. G1 स्क्वायर G2 को नीचे लगाओ, A आ गया. एंड फ्रॉम द लास्ट टू दिस, ठीक है, ये इनसे आया है. लास्ट टू से लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे G2 स्क्वायर अपॉन G1 इज इक्वल टू B. दोनों को ऐड कर दो. इज इक्वल टू A प्लस B. नाउ A is arithmetic mean between A and B. A दोनों नंबर्स में arithmetic mean है. तो व्हाट इज A इज इक्वल टू A प्लस B बाई 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे A प्लस B इज इक्वल टू 2A. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. तो देखो यहाँ पे A प्लस B की वैल्यू पुट कर दो. यहाँ से फ्रॉम सेकंड पुट वैल्यू ऑफ A प्लस B. तो ठीक है, G1 स्क्वायर अपॉन G2 G2
और 2a इज इक्वल टू 2a ये आ गया। अब सेकंड प्रूव करना है, इसके लिए कारक करोगे आप, एलसीएम ले लो इसका, यहाँ आएगा G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब अपॉन G1 G2 इज इक्वल टू 2a। G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2a G1 G2। तो दिस प्रूव द रिजल्ट। ठीक है, तो दो ज्योमेट्रिक मीन थे G1 एंड G2 बिटवीन A एंड B। A एंड B हमने सपोज किया नंबर, तो A G1 G2 B आर इन G2, इनके रेशियो लिख लो G1 अपॉन A, G2 अपॉन G1, B अपॉन G2 बराबर होगी। पहली दो टर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे G1 स्क्वायर अपॉन G2 इज इक्वल टू आ गया A, दूसरी दो टर्म से G2 स्क्वायर अपॉन G1 इज इक्वल टू आ गया B, दोनों को ऐड कर दो A प्लस B। उसके बाद दिया हुआ है A इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स, A इज इक्वल टू A प्लस B बाई 2, यहाँ पे A प्लस B की वैल्यू आ गई 2A। इस क्वेश्चन में A प्लस B की वैल्यू पुट करना 2A आ गया, इसका एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सेकंड को। Next number, next question. This is example 5, page 15. Example 5, page 15 from my notes. Is ABCR in GP? Given है ABCR in GP. X is arithmetic mean between A and B. X is arithmetic mean between A and B. Y is arithmetic mean between B and C. ये भी गिवन है साथ में, ठीक है। Y is arithmetic mean between B and C. X arithmetic mean A और B का है और Y B और C का है। तो we have to prove that A upon X plus C upon Y is equal to 2 and 1 upon X plus 1 upon Y is equal to 2 upon B। ये दोनों प्रूव करने हैं। देखो X is arithmetic mean between A and B, तो what is X? X is A plus B by 2. It is given, it is arithmetic mean between A and B. इसी इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन दी हुई थी ABCR इन GP। अगर ABC GP में है तो यहां से क्या आ जाएगा? G square is equal to AB. This is equation number 1. ABCR in GP this was given. So G square is equal to AB, equation number 1. X is arithmetic mean between B and C, and Y is arithmetic mean between B and C. Y is equal to B plus C by 2. 3 इक्वेशंस बन गया। आपको जो भी गिवन है उसमें से इक्वेशंस लिख लेंगे। और इसकी स्ट्रेटेजी सॉल्व करने का तरीका क्या है? आप इस फर्स्ट इक्वेशन में देखोगे हमें दिया हुआ है A B C X Y। ये कितने वेरिएबल है टोटल? A B C X Y 5 है। इसमें B नहीं है। सेकंड फर्स्ट प्रूव करना है, उसमें B इज नॉट देयर। तो व्हाट यू हैव टू डू, इन तीनों इक्वेशंस में से B को क्या करना है? यू हैव टू एलिमिनेट B। तीनों इक्वेशन में से B को एलिमिनेट करना है।
मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूँ, ABCR इन GP, तो जो सेंटर वाले टर्म का स्क्वायर है किसके बराबर होगा, AC के, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AC। इन तीनों में से हमें B को एलिमिनेट करना है। देखो फ्रॉम सेकंड में से B की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 2x माइनस ए। फ्रॉम थर्ड में से B की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 2y माइनस सी। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3, b इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस ए 2y माइनस सी। अब यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट से बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, AC इज इक्वल टू 2x माइनस ए 2y माइनस सी। हमें गिवन था ABCR इन GP, अगर ABC GP में तो B स्क्वायर इज इक्वल टू AC फर्स्ट इक्वेशन, x is arithmetic mean to the a and b, x is equal to a plus b by 2, y is equal to b plus c by 2, y is arithmetic mean to b x। तो ये प्रूव करना है, तो इसमें b नहीं है, इसलिए हमें जो तीन इक्वेशन बनी है उसमें b को एलिमिनेट करना था। मैंने थर्ड में से b की वैल्यू निकाली, सेकंड में से b की वैल्यू निकाली, दोनों को मल्टीप्लाई किया, b स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में से पुट कर दो। अब ये देखो AC इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करो, 4xy माइनस 2cx माइनस 2ay प्लस AC कैंसिल हो गया, नेगेटिव टर्म दूसरी तरफ ले जाओ। ठीक है, तो ये आ गया 2cx प्लस 2ay इज इक्वल टू 4xy। इसको 2xy से डिवाइड कर दो, इस तरफ आ जाएगा 2xy से डिवाइड करो, x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, c अपॉन y, 2 से 2 कैंसिल, y से y कैंसिल, a अपॉन x, इसका 2, फर्स्ट इज प्रूव। सेकंड प्रूव करने के लिए इसमें क्या है, x y b, इसमें a और c एलिमिनेट करते हैं। अब देखो फ्रॉम सेकंड, अब a और c को एलिमिनेट करना है। फ्रॉम सेकंड a की वैल्यू निकाल लो, a is 2x माइनस 3। फ्रॉम थर्ड c की वैल्यू निकालो, c is 2y माइनस b, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, AC इज इक्वल टू 2x माइनस b 2y माइनस b। नाउ देखो फ्रॉम फर्स्ट द वैल्यू ऑफ AC इज b स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल हो गया। अब इन द सिमिलर वे यू कैन प्रूव दिस। तो इसका ट्रिक क्या निकालने का कि सारी इक्वेशन लिख लो, जो प्रूव करना है उसमें देखो कौन सी चीज एब्सेंट है, जो चीज एब्सेंट है उसको एलिमिनेट करना है। कैसे करना है, तीनों इक्वेशन को सॉल्व। पहली इक्वेशन में बी नहीं था, बी को एलिमिनेट किया, दूसरी में ए और सी नहीं था, ए और सी की वैल्यू निकाल के दो इक्वेशन में से तीसरी में पुट कर दिया। ओहो, टाइम का गड़बड़ हो जाएगी सारी, मैंने पता था हम जो करना था। Next is some information about numbers in GP. If in a number problems, in GP, in product of three numbers in GP is given, then suppose the three numbers as a upon a upon r, a r, and अगर चार नंबर्स की प्रोडक्ट दी हुई हो तो सपोज करते हैं a अपॉन r क्यूब,
ए अपॉन आर ए आर क्यूब, इसका कॉमन डिफरेंस आर स्क्वायर है, इसका कॉमन डिफरेंस आर है। एंड इफ वी आर टू टेक 5 नंबर्स इन जीपी whose product is given, क्वेश्चन में प्रोडक्ट गिवन होनी चाहिए। If no product is given, then you should take general GP। तो फिर हमें जनरल जीपी लेना। ऐसे क्वेश्चन है, फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी सच दैट देयर सम इज 19। 3 नंबर्स जीपी में निकालो जिनकी सम 19 है एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 133, उनके स्क्वायर्स की सम 133 है। तो इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं दी हुई, तो हम नंबर सपोज करेंगे ए आर स्क्वायर। तो दिस इज एग्जांपल 2, पेज 16 ऑन माय नोट्स। Let the 3 numbers are AR square. The sum of numbers AR plus AR square. The sum of numbers is 19. A इसमें से कॉमन आ गया, 1 plus R square is equal to 19. And sum of their squares, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स इज 133। इसमें से स्क्वायर कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 133। नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस, वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशंस। ऐसे करोगे, इसमें देखो यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ है, क्या करोगे, डिवाइडिंग 2 बाई स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, 2 को फर्स्ट के स्क्वायर से डिवाइड करो। देखो क्या है, 2 है ए स्क्वायर अपॉन फर्स्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू 133। फर्स्ट का स्क्वायर आएगा 19 इंटू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इज 19 इंटू 19 से कैंसिल हो जाएगा 7। नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो ये इसके फैक्टर्स बन जाते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/19। इसका देखो एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7/19। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आर की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आर सॉल्व करोगे तो आएगा 3/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर की वैल्यू निकालो 2/3 है 3/2। उसके बाद जब आर 3/2 है, इस वैल्यू में इसमें पुट करो तो आपके पास ए आ जाएगा। जब आर 3/2 है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो ए आ जाएगा। ठीक है, उसमें ए की वैल्यू आ रही है 9, और जब आर को 2/3 पुट करोगे इसमें, ठीक है, वैल्यू पुट आर इज इक्वल टू 2/3, आर 4। व्हेन आर को 2/3 पुट करोगे तो ए इज इक्वल टू आएगा 9। तो यू कैन राइट द नंबर्स, टेक वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, आर की 2 वैल्यूज आएगी, पहले फर्स्ट वैल्यू पुट करो। जब आर 3/2 है, ए 4 होगा। जब आर 2/3 है, ए 9 होगा। इसको इस नंबर्स में पुट कर दो।
On putting this, you get the required value, that is 469096 volt.